Before we go to the decision, sir, uh, we would want some words from Mr. Wahad Siraj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. The topic was very interesting. Patriotic leadership. And if I ask you the question that if I give you an ordinary man who is not patriotic, how would you make him or her patriotic? It is actually a very difficult answer, but I'll give you a very simple answer. You can make somebody a patriotic if you can make him or her a man or a woman of character or a man or a woman of honesty. Character is the foundation of success and also the foundation of patriotism. And what is character made of? The character is made of honesty. The character is made of integrity. The character is made of humility. The character is made of sacrifice. The character is made of justice. The character is made of simplicity. The character is made of hard work. The character is made of patience, the courage, the fairness, the brotherhood, the love, and the tolerance. The more solid we become in our character, the more solid patriot we can become. And the more solid, successful person we can become. You must have been reading a lot of books on success and management and leadership. And if you look at the lives of all the great leaders, all the prophets, and all the worldly leaders, you would find all of them the man or the woman of character. So this is the power of the character. And this was explained to us by the great leader, Allama Iqbal, and the very great kalam which he has said. Sufi ki tariqat mein faqat masti-e ahwal. Sufi ki tariqat mein faqat masti-e ahwal. Mulla ki shariat mein faqat masti-e guftar. Sha'ir ki nawa murda wo afsurda wo bezauq. अफकार में सरमस्त ना ख्वाबीदा ना बेदार वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको हो जिसके रगो पे में फ़कत मस्ती किरदार. My dear fellows, do you think that our present leaders are patriotic? And are they honest? You should say loudly, no. Yes. So why they have reached to the top? Yes. Exactly. The lady here has rightly said. They have reached to the top because of us. Because of myself and because of all of us sitting here. Because as individuals, and collectively as a society, we have lost our character. We have lost our integrity and our honor is compromised day in and day out. Whether it is drone attacks or whether we are taking the begging bowls in front of the Western powers or whether the Raymond Davis kills 2 Pakistani citizens in a broad daylight and the third one is crushed under the wheels of a Land Cruiser, and one of the widow suicides in the broad daylight, 4 murders, and the people, the leaders are talking to give immunity and the safe passage to the killer.
is very unfortunate, my dears. And again, the great philosopher has told us, उसकी किस्मत में महकूमी व मजलूमी है, उसकी किस्मत में महकूमी व मजलूमी है, कौम जो कर न सकी अपनी खुदी से इंसाफ, फितरत अफराद से अगमाज भी कर लेती है, करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को कभी माफ. My dear fellows, we need to improve ourselves. We need to change ourselves. I need to change myself, and you need to change yourself. The change does not come from criticizing people. The change comes from within, and that is the most profound change. उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों का किरदार सूरत फौलाद. शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उफ्ताद. My dear fellows, we need to bring this change. And if we start bringing this change, we can become a very successful and honorable nation within few years. Trust me and believe me. These are not my words. These are the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. No doubt that Allah ta'ala does not change the state of the nation unless they change themselves. So we need to change ourselves. This requires time. This requires efforts. This requires patience. And this requires resilience. And believe you me, when we start changing ourselves, the present corrupt and the liar leaders would run away. Just like the Hosni Mubarak has left Egypt. And just like the lion of Tripoli is looking for some safe passage. And a new generation from you of the honest and competent leaders will take over. So let's make a pledge. An average Pakistani speaks about 10 lies a day. An average Pakistani, including myself and yourself, speaks 10 lies a day. Politicians and businessmen, they are exception actually. So let's make a promise to ourselves. I'm not saying that you leave all the lies today. That is very difficult. It's not impossible. But let's make a pledge that we start reducing to speak one lie a week. Or maybe one lie a month. Is it possible? Raise your hands, my dears. Can we reduce speaking one lie a month? Yes? Yes. And if we do that, within a year, we can become a full honest. And if we become honest, you see how the success runs after you. सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का. My dear fellows, if we want to become the leader of the world, we need to speak truth. And we need to spread justice. And we need to keep raising our voice and start the struggle peacefully. Whichever the struggle for the justice, the struggle for the honesty, the struggle for the freedom. Thank you very much. हम किस किस को इल्ज़ाम देंगे? खुद को नहीं तो और किसको? लीडर्स को, अपने लीडर्स को. तो वो तो सुना ही होगा
कि जो लीडर होता है वो कौम का ही अक्स होता है। तो ये सोच लें कि अगर आपके लीडर हैं जो इन्हें आप ब्लेम करना चाहते हैं तो आप खुद क्या हैं। I would want Mr. Shakil Ahmed to express his views to us. अस्सलाम वालेकुम माय यंग फेलोज। अज़ीज़ ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी। बेसिकली मैं इस तारीफ़ के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन तारीफ़ मेरी सिर्फ इतनी है कि मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ, एट होम एंड अब्रॉड। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने बड़ी प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, सो यू वुड हैव एन इंस्पिरेशन कि हाउ कैन यू बी पार्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चेंज इन दिस सोसाइटी। जिस तरह से अजीज़ ने कहा कि मतलब मैं अपना सारा प्रोफेशनल कैरियर ऑस्ट्रेलिया से वापस पाकिस्तान आ गया हूँ। मैं वापस इसलिए आया हूँ कि पाकिस्तान से जब मैं गया था तो आई लेफ्ट इट विद अ वेरी हैवी हार्ट। CSS मैंने किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, उसके बाद CSS किया। ख्याल था शायद ब्यूरोक्रेसी में मुल्क की कोई खिदमत है, लेकिन वहाँ पे करप्शन का जो निज़ाम देखा, वहाँ से फिर बहुत मुश्किल है सर्वाइवल। आप अगर अपने वज़रा की बात ना माने और अपने जो आला हाकिम हैं उनकी बात ना माने, तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद ख्याल था कि शायद फ़ौज के लोग हमारे कोई अच्छे लोग हैं, हमारे जर्नैल को ज़्यादा कस्टोडियन है इस कंट्री के, आर्मी में चले गए। वहाँ के हालात देखे, ज़्यादा मायूसी हुई कि सियासतदान एक तरफ, ब्यूरोक्रेट्स एक तरफ और जर्नैल उन सब से एक तरफ। ठीक है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आई लेफ्ट, आई क्विट सिविल सर्विसेज एंड पाकिस्तान आर्मी एंड दैट्स इट। चला गया मैं PhD करने के लिए ऑस्ट्रेलिया। ख्याल था भाई हम जैसे लोगों का ये बड़ा अलमिया होता है कि हमारे पास ना कुछ ऐसे असासे बनाए हुए हैं जो गद्दारी के एवज़ हों, जैसे कि हमारे इस वक्त ऐवानों में लोग बैठे हैं जिनमें से 80% या गद्दार हैं या उनकी औलादें हैं। दैट इज़ अ रियल फैक्ट। और उसके बाद जो लोगों ने माल बनाया, पाकिस्तान की कौमी दौलत को लूट कर बनाया, ये इनके बाप की जागीर नहीं है। दिस इज़ योर फंड, दिस इज़ द पब्लिक फंड। व्हेन आई से दिस इज़ योर फंड, I mean the public fund, and you are the public, you are the owner of this trust basically, which is now distrusted to every extent. PhD के लिए जब चले गए ऑस्ट्रेलिया कि चलो कुछ पढ़ लिख के कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, हलाल की रोज़ी में 4 पैसे आ जाएंगे। जब ऑस्ट्रेलिया चले गए तो वहाँ पर बस कुछ अच्छी अल्लाह ने कोई इज़्ज़त बख्श दी। वहाँ पे हिजरत में वैसे भी अल्लाह ताला ने बरकत डाली है। I left to Pakistan with a heavy heart और वहाँ पे when I was doing my degree, I was elected as the president of University of Western Sydney, Australia, which is one of the largest university of Australia, housing 35,000 students, and it never happened in the history of Australia that a Pakistani or Muslim would have presided such a huge organization. आपके एक पाकिस्तानी भाई को ये फ़ख्र हासिल हुआ कि जाके गोरों को लीड कर सके, अमेरिकन, यूरोपियंस, ब्रिटिश एंड जस्ट नेम इट फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया। वहाँ पर मुसलमानों के लिए कुछ काम किया, फ़लस्तीन के लिए काम किया, कश्मीर के लिए काम किया, पाकिस्तान के लिए काम किया, और बाकी जो वहाँ पर जो कम्युनिटी होती है मुसलमानों की वेस्टर्न वर्ल्ड में, उनके साथ मिलकर तो अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी। और एक और अल्लाह ने एजाज़ बख्शा कि आपका ये पाकिस्तानी भाई, ये मैं कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि एक पाकिस्तानी भाई कि हम सब पाकिस्तानी हैं। आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर द स्टेट पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स फ्राम सिडनी कि आप हमारे नुमाइंदा बन के पार्लियामेंट में जाएँ। एंड दिस हैज़ टू बी गोइंग टू बी दी फर्स्ट एवर सीट इन ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी, स्पेशली द स्टेट ऑफ न्यू साउथ वेल्स। ये बातें बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी का जितना जौहर है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा आपको एक वाक़या सुनाऊं कि हम पाकिस्तानी वो कौम है, खुदा की कसम, हज़ारों अमेरिकन, हज़ारों यूरोपियंस, हमारों अफ्रीकन एंड एशियंस को देखा है लीड करके, और जहाँ जहाँ मैंने पाकिस्तानी को देखा है, आई कैन स्वेयर अपॉन गॉड कि उनका कोई मैच ही नहीं है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम बद से ज़्यादा बदनाम हैं। हमारा जितना भी प्रोजेक्शन है वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर, वी आर ट्रीटेड आइदर एज बेगर्स और द टेररिस्ट। वी हैव गॉट नो अदर ब्रांड एंड दिस इज द ब्लडी ब्रांड वी हैव डेवलप्ड फॉर आवरसेल्व्स। जब माँ बहनों को, बेटियों को बेचा जाएगा डॉलर के एवज, तो कौन सा टाइटल मिलेगा? क्या आपको सुरखाब के पर लगाए जाएंगे? आपकी ज़मीन के ऊपर
आपकी ज़मीन के ऊपर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और इस्लाम के नाम पर ही इंशाअल्लाह कायम रहेगा, वरना हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए पहले भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं और आज भी अल्लाह की मेहरबानी से इस कौम के इतना जज्बा है कि इस कौम को बचाने के लिए, इस मुल्क को नज़रियाती बुनियादों पर कायम रखने के लिए अपना सरदर्द सब लड़ने को तैयार हैं। और वो वक्त अब दूर नहीं है जब ये पाकिस्तानी लोग एक फ्रस्ट्रेशन से गुजर के एक इंतहाई क्लाइमेक्स की तरफ नाउ वी आर लीडिंग टू। हमारे पास अल्लाह ने इतने बड़े वसाइल दिए हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ने दुनिया की 10 मोस्ट रिसोर्सफुल नेशंस में शामिल किया है, लेकिन हमारे नमक हराम गद्दार वो शेरवानी में है या वर्दी में है, उन्होंने इस मुल्क को दुनिया की 10 जलील तीन कौमों में शामिल किया है। इसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं है। मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ मुख्तलिफ वहाँ से लिखकर, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, डेली मिरर बरतानिया का, एंड ऑस्ट्रेलिया का, एंड पाकिस्तान में कुछ आर्टिकल्स मेरे छपते रहे, नेशन फ्रंटियर पोस्ट के अंदर। मैं इसमें खुलकर लिखता हूँ कि वी आर अवर एनिमीज, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, हम खुद हैं। हमने जितनी गद्दारी इस मुल्क के साथ की, खुदा की कसम इतनी वफादारी करते तो पाकिस्तान आज अमेरिका की जगह खड़ा होता। पाकिस्तान वुड हैव लीडिंग द वर्ल्ड, द इंटरनेशनल कम्युनिटी, 10 मोस्ट रिसोर्सफुल नेशन और 10 दुनिया की जलील तरीन कौमें। मुझसे एक अंग्रेज कहता है, शकील डोंट टॉक अबाउट पाकिस्तान। मैं कहा व्हाई शुडंट आई टॉक अबाउट पाकिस्तान? कि यू पीपल आर ब्लडी बेगर्स, यू पीपल आर ब्लडी टेररिस्ट। मैंने कहा हु? आई वाज साइलेंट ऑन इट बिकॉज ही वाज राइट। देखिए, जो कुछ भी मीडिया बताता है, एक मीडिया ने इस कौम में जो गंद डाला है, रहे नाम अल्लाह का, ऐसा ऐसा यहाँ काम किया है जो पाकिस्तान बहुत से अच्छे काम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एम्पलीफाई किया है हमारी डिस्ग्रेस को भी, डिसरेपुटेशन को भी। सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज कास्टर को बड़ी जोर से न्यूज आती है कि जनाब मैंने ये न्यूज देनी है, आई एम ब्रेकिंग दिस न्यूज फ्रॉम दिस चैनल। हमने रेस चैनल बनाया किस मकसद के लिए? हमारा जो पर्पस है, टू इवॉल्व पैट्रियोटिक लीडरशिप फ्रॉम द कॉमन मैन टू रिप्लेस करप्ट रूलर्स फॉर रीबिल्डिंग पाकिस्तान एंड इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और इस्लाम के नाम पर ही इंशाअल्लाह कायम रहे। मुझसे वो कहता है, गोरा मीडिया का ऑस्ट्रेलियन, कि वेल मिस्टर शकील, यू हैव टाइटल्ड रेस चैनल इन द नेम ऑफ योर स्लोगन इज पीस, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, बट हाउ कम यू आर सर्विंग दी। मैं उर्दू में बताता हूँ आपको, आप कहते हैं पीस, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं आपका चैनल, लेकिन आपका तो सिर्फ इसमें पाकिस्तानी है, मुसलमान है, दाढ़ी वाले हैं, मस्जिदों वाले हैं, ये क्या है? ये तो इसमें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई है नहीं, जो दुख है वो आप इनका दिखाते हैं। मैंने कहा आप मुझे बताएं कहाँ कौन से गोरे के पास कश्मीर है, कौन से गोशे के पास, कौन से गोरे इस गैर मुल्क गैर इस्लामिक कंट्री में लाल मस्जिद है जिसपे तबाही हुई, जिसपे बमबारी की गई? कौन सा ऐसा जो है ना फ़लस्तीन का इलाका है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के है, जहाँ पर मसाइल होंगे उनकी तस्वीर कशी भी वहीं से होगी। आप हमें बता दें कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर कितने लोग वहाँ पर भूखे मरते हैं, कितने लोगों की असमतें लुटती हैं, कितने लोग जो है इनजस्टिस का सफ़र करते हैं। आप मुझे बताएं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आई विल प्रोमोट यू ऑन माई चैनल, क्योंकि पीस, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी हमने नाम जरूर रखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र भी हम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मुसीबत का जो एंड टेकन है वो भी हम ही हैं। आप हमारे साथ काम कहते हैं, हाउ कैन वी कोऑपरेट विद यू? मैंने कहा तो कोऑपरेशन यू कैन रेंडर अस, नोबडी एल्स कैन डू इट। आप सिर्फ एक काम करें, सिर्फ ये कि आपकी जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है, आप अपनी वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बता दें, ख्वाह वो अमेरिका हो, यूरोप हो, व्हाटएवर द कंट्री इट कम्स फ्रॉम, कि आप अपनी हुकूमतों के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उसकी बुनियाद पे इम्तियाजी पॉलिसीज़ ना बनाएं। इम्तियाजी पॉलिसी से मुराद ये है कि ये पॉलिसी पाकिस्तान के लिए है, ये इराक़ के लिए है और ये आपके लिए अफगानिस्तान के लिए है। एट द एंड ऑफ द डे जितने भी दुनिया में जंगें हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों के कत्लेआम हुए, एट द एंड ऑफ द हु वाज सफरिंग, वी वर सफरिंग। 1400 मिलियन इस वक्त जो है आपके अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमान वर्ल्ड वाइड हैं, उसके अगेंस्ट आपके 14 मिलियन सिर्फ यहूद हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कौन कहाँ खड़ा है, उनकी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है। हम जिल्लत की तबाही से रोज़ाना एक नया रकम करते हैं बाब, और वो दैट्स नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर। और वहाँ पे मैंने कहा कि दरमियाना रास्ता कोई नहीं है, आपके पास 2 रास्ते हैं, वेदर आई कन्विंस यू और यू कन्विंस मी। या आप मेरी बात को फॉलो कर लें या मैं आपकी बात को फॉलो कर दूँ। एट द एंड ऑफ द डे यहूदी ये कहने पर मजबूर हो गया कि मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसमें यहूद और इसराइली रियासत बहुत हद तक शामिल है उसके अंदर। So that is the demonstration you have to demonstrate at every scale,
in every perception, in any community you pass through. सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, खुदा की कसम से मैं कहकर कहता हूँ, रेमंड डेविस का मैं आपको ज़ेली सा वाक़या बताऊँ। 2009 में एक रिपोर्ट मैंने भेजी मजीद निज़ामी साहब को, डॉक्टर शीरी मज़ारी को, तलत हुसैन आज टीवी वाले को और जावेद चौधरी को। ये सब बड़े बड़े मेन लोग हैं, आपको जानते होंगे मीडिया को। मैंने कहा दिस इज़ द हेल इज़ गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान। तो इन्होंने कहा जनाब आप 16,000 किलोमीटर बैठे हैं गोरियों के साथ, आप डराते हैं हमें, यहाँ तो सब मौज मस्ती है। मैंने कहा अच्छा, डोंट टेक माई वर्ड्स, टेक योर टाइम एंड सी बाई योर ओन आइज। 2 हफ्ते के बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा, अमेरिकन मिलिट्री बेस इन इस्लामाबाद। वो नेशन वालों ने तो नहीं छापा, वो फ्रंटियर पोस्ट वाले, वो हमारे गैरतमंद भाई है, वो उसने छाप दिया। उसने कहा बड़ा छापेगा, वो छाप दिया आफरीदी साहब ने, वो पब्लिश हो गया। वो अल्लाह की मेहरबानी से उस पर पूरे आर्टिकल में मैंने कहीं लिखा था कि हमारी, ये 2009 की बात कर रहा हूँ, तकरीबन सवा साल हो गया इस बात, सवा साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया, सॉरी 1.5 साल। उसमें मैंने ये लिखा कि हमारी जो रॉ मोशाद और आपकी जो दूसरी एजेंसी है यहूद नसारा की, वो इतना डीप पेनिट्रेट कर गई हैं कि ये GHQ में घुस के मारेंगे जर्नलों को, भागने का मौका नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली आफ्टर दैट आर्टिकल वाज पब्लिश्ड, GHQ वाज अंडर अटैक। लोगों ने मुझे खत लिखे, ईमेल किए, फ़ोन किए कि शकील साहब आपको पता था GHQ पे हमला होने वाला है, फिर तो आपको यही पता होगा हमला किसने कराया। मैंने कहा अकल के अंधों, ठीक है मैं यहाँ पे सेंसिटिव पोजीशंस पे रहा हूँ, यहाँ से लड़ मर के मैं चला भी गया हूँ, लेकिन अब तो मैं काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया बैठा हूँ। लेकिन इट डजंट मैटर वेयर योर बॉडी लिव्स, व्हाट मैटर्स इज वेयर योर हार्ट बीट्स। माई हार्ट वॉज बीटिंग इन पाकिस्तान। 1.5 साल पहले आई इंडिकेटेड आई वॉन्ट दिस टॉप मीडिया पीपल, टॉप मीडिया पीपल को मैंने वार्न किया, दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस कंट्री, दिस इज माई कंट्री बेसिकली। अब वही हुआ, रेमंड डेविस, वो बिल जितने भी खुले थे वो सारे अंडरग्राउंड कार्रवाई अब हो गए। अब वो सड़क पे घूमते फिरते मांगते बचा लें आप जाके। कितनी हमारी एजेंसियां, कितने हमारे जो है ना वो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, किसमें दम नहीं है, पकड़ते हैं, इनका दम पड़ता है, अपना कोई पाकिस्तानी बात करे उठा के गायब कर दो उसको, नजर ना आए, 600-700 की लिस्ट में शामिल कर दो उसको। बहादुरी ये नहीं है अपने लोगों पे बम बरसाना, अपने लोगों पे मारामारी करना। बहादुरी ये है जो अपने दोस्त, अपने मुल्क के दुश्मन है, उनको आइडेंटिफाई, उनको आइसोलेट एंड एलिमिनेट करें, ये बहादुरी है। टू कट द बिजनेस शॉर्ट, आई वांट टू कम टू द कंक्लूजन। बेसिकली हमारा सबसे बड़ा अलमिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक है, लीडरशिप। अल्लाह ने हमें वो वसाइल दिए हैं, एक हमारी जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हमारे वसाइल हैं बलूचिस्तान में पड़े हुए हैं, इतने वसाइल अल्लाह ने दिए कि अगर हम एक कान भी अगर बेच दें तो एक हमारा वो है पूरा पाकिस्तान का वो उतर जाता है, कर्जा चेंज है कि आप पूरी ट्रिलियंस ऑफ 500 बिलियन डॉलर का जो है, आप यू कांट इमेजिन कि अल्लाह ने कितना रिसोर्स दिया है। लेकिन हमने किस हाथ तक, वो भी उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन कंसोर्शियम को दे दिया कि ले जाओ निकाल के, तुम्हारे बाप की जागीर है, हम भी खाएंगे और तुम भी खाओ, ठीक है। ये तो पाकिस्तानी है, भूखे मरते हैं, इनको तो आदत ही है, ये हमेशा से खामोश है और अभी उठने वाले नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ अलमिया ये है। मुझे एक बात जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर चुभती थी, मैं शकील अहमद एक आम आदमी हूँ, ना मेरा बाप जागीरदार है, ना हमारा बाप जो है ना वो जर्नैल है, ना मेरा बाप कोई पूरा लूट मार करने वाला आदमी है। आम आदमी है, अपनी मेहनत से अपनी रिज़्क़ कमाने के लिए कमा के अपना गुजारा करते हैं। जब मुझ जैसा आदमी वहाँ पे जाकर हज़ारों गोरों को जाके लीड कर सकता है, यूरोपियन सोसाइटी में जाके उनको हेड कर सकता है, उनकी पार्लियामेंट की नॉमिनेशन ले सकता है, तो क्या मेरे सर पे सींग लगे हैं? क्या आपके अंदर वो कोई सलाहियत नहीं है, आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, तो किस लिए डिग्रियां कर रहे हो? फाड़ो डिग्रियों को, जाके कोई दुकानदारी करो। अगर तालीम से अगर हमें ये चीजें शऊर नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है एजुकेशन का। बाहर के अंदर सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है वो ये कि दे डू नॉट प्रोड्यूस द टेक्नोक्रेट्स, दे ऑल्सो एड अप द फ्लेवर ऑफ लीडरशिप। उन्होंने वहाँ से जमात 5 से उन्होंने प्राइमरी से शुरू कर दी जाती है कि इनमें लीडरशिप ग्रूम की जाए, वहाँ पे पार्लियामेंट बनाई जाती है, उनमें सेक्रेटरी, उनमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर की जिम्मेदारियाँ दी जाती है ताकि उनमें एहसास जिम्मेदारी हो और उनको पता लगे कि बाद में अमूर रियासत किस तरह चलाए जाते हैं। फिर वो हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं पैदा करते, हमारी तरह डिग्रियां लेके फिरने पे मजबूर नहीं हो जाते। वो जब गोरा कहते हैं ना, एक गोरा पूरी कौम पे भारी है, रेमंड डेविस एक ही है। 10 लाख इन्होंने मुसलमान मार दिए इराक और अफगानिस्तान में, वो सबका खून उसके आगे हीच है, एक रेमंड डेविस के आगे। जो रियल क्रिमिनल है, जो वेना कन्वेंशन क्लियरली कहता है कि दिस इम्यूनिटी इज अवेलेबल ओनली टू डिप्लोमेटिक वाइल डिस्चार्जिंग देयर डिप्लोमेटिक ड्यूटीज। कोई डिप्लोमेट अगर इवन अपने पर्सनल एक्ट के तौर पे क्राइम करता है, ही इज नॉट इम्यून। वो तो नमक हराम डिप्लोमेट ही नहीं है, वो तो है ब्लैक वाटर का एजेंट।
आप वो किस तरह की, ये तो आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू फाइट द केस इन अ मैनर कि हमारे दुश्मन कहीं भाग कर ना जाने पाए, और वो सफ़ों में हद तक घुस चुके हैं कि हमारे लिए अब काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि पिंडी वालों की बारी कब आती है, मुल्तान वालों की बारी कब आती है। 1200 एजेंट नाउ हैव बीन स्प्रेड आउट फ्रॉम खैबर टू कराची एंड दे आर जस्ट टारगेटिंग दिस प्लेस आर देयर। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ टर्न ओनली। सारी बातें कहने का मतलब ये है कि आप खुदारा अपना आप को पहचाने, अपने जौहर को पहचाने, अपनी पहचाने कि अल्लाह ताला ने आपको क्या कौम पैदा किया है। मैं छोटी सी मिसाल दूं, जब माओ जेतुंग का इनकलाब आया चाइना में, तो वो माओ जेतुंग वाज जस्ट पासिंग बाय द रैली, तो वो जस्ट ही वाज गिविंग अ लिटिल टच टू द हैंड्स ऑफ द पब्लिक रैलिंग अराउंड हिम ना। तो एक शख्स के पास वो जाकर माओ जेतुंग रुक गए, जाकर ना बड़ी देर तक उससे गर्मजोशी से मुसाफा किया। तो उस शख्स ने पूछा, माओ जेतुंग मैं गुस्ताखी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पूरी कौम आप पे जान निसार करने को तैयार है और आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, इसकी वजह? कहते जेंटलमैन, जिस कौम को तुम बिलोंग करते हो वो अंदाज़ा नहीं है कितनी अजीम कौम है। एंड ही वॉज अ पाकिस्तानी, ही वॉज अ पाकिस्तानी। कौन सा पाकिस्तानी आपको चाहिए? कौन सा आपको ब्रांड लगा हुआ है पाकिस्तान का? किस किस्म की ब्रांडिंग चाहिए पाकिस्तान को? क्या उसका कोई स्पेशल मेकअप कर दिया जाए? क्या स्पेशल उसको डेकोरेशन दे दी जाए? इट इज ऑल फ्रॉम हियर एंड देन फ्रॉम हियर, इट गोज टुगेदर। अब भी आपके अंदर एहसास करने के लिए, अपनी वक़्त जानने के लिए, अपने हकूक़ को समझने के लिए ना सिर्फ एहसास डेवलप करना है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक प्रॉपर तरीके से चलना है। इसके लिए हमने अल्लाह की मेहरबानी से ये चैनल कोई नहीं है, ये एक मिशन है टू रेस्क्यू पाकिस्तान एट टाइम ऑफ एक्सट्रीम क्राइसिस। मीडिया का सहारा हमने इसलिए लिया है कि मीडिया के जरिए बहुत सारी चीज़ें बहुत दूर तक बातें चली जाती हैं, बहुत तेज़ी से आपका मैसेज कन्वे हो जाता है। तो इस मीडिया को हमने नेटवर्क के तौर पे इस्तेमाल किया है कि अच्छे इदारे और अच्छे अफराद नेटवर्क हों, ताकि हमारा जो पाकिस्तान रेस्क्यू मिशन का जो पर्पज़ है टू इवॉल्व द पैट्रियोटिक लीडरशिप फ्रॉम द कॉमन मैन। आप में से ही हो सकता है कल कोई वज़ीर ख़ारजा हो, कल कोई वज़ीर ख़जाना हो, कल कोई वज़ीर बहबूद हो, कल कोई वज़ीर आज़म हो। क्या इन सर पर सींग लगे जिनकी डिग्रियाँ भी जाली हैं? इन सब की जिम्मेदारी हम पर आती है। खुदारा अपनी एहसास को समझे और अब एक प्लेटफॉर्म पर नेटवर्क हो जाए, अपने इस एहसास तस्करे को कह दें, बता दें कि वी आर सफिशिएंट एनफ टू टेक द कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और हमने रेस चैनल के जरिए एक पूरा जो एक माहौल पैदा किया है, जिस तरह से नेटवर्किंग हम कर रहे हैं अच्छे इदारों और अफराद की। आप उस मिशन में शामिल हो हमारे साथ पाकिस्तान को बचाने में, या सिर्फ एक तकरीर सुनी, तालियां बजाई, देन गो होम, ये आपका मकसद है यहाँ आने का? बताइए मुझे। आप चाहते हैं प्रैक्टिकली काम करना? आप चाहते हैं कि शकील अहमद यहाँ से 16,000 किलोमीटर अपना सब कुछ छोड़ के, इज्जत, पैसा, दौलत, बीवी बच्चे छोड़ के यहाँ पर आ जाए सिर्फ इसलिए? नथिंग। मैं समझता हूँ ज़मीन का जितना मुझ पर कर्ज है मैं उतार नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ हकीर सी कि शायद मेरी जो है ना वो आरजू पूरी हो जाए। इसीलिए आप भी अपना जौहर पहचानें और आगे आएँ और इस मुल्क की बागडोर संभालने के लिए अपने आप को तैयार करें। सोशली, पोलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड रिलीजियसली यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन वेरी सून। इन्होंने कहा कुछ साल में, मैंने 3 साल का टारगेट बताया, सिर्फ 3 इयर्स में हमारे पास एक टेक्नोक्रेट्स का पूरा हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं लीगल। आप जाके देखेंगे रेस चैनल पे जाके, यू वुड फाइंड इट वेरी क्लियरली। हमने बड़ा एलेबोरेट किस्म का एक सिस्टम खड़ा कर रहे हैं जहाँ पे ना सिर्फ हम टेक्नोक्रेट्स प्रोड्यूस करेंगे, इंशाल्लाह कर रहे हैं, पूरी पॉलिसी देंगे पूरी कौम को, अच्छी लीडर आप नहीं से अच्छे लीडर आएंगे जो ये इतनी खूबसूरत बातें यहाँ भाई करके गए। इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें सिर्फ कोई अहलियत नहीं है, कोई जज्बा था तो जबान पर आया। एंड ही कैन बी एक्चुअली ट्रांसलेटेड, इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू सम प्रैक्टिकल एफर्ट टू सेव दिस नेशन। ऐसा है कि नहीं है? जितने लोगों ने तकरीरें की यहाँ सिर्फ दिल जीतने के लिए, तालियों के लिए की, बताइए आप मुझे। यू हैव गॉट अ प्रैक्टिकल एम्बिशन एंड यू हैव टू गेट इट थ्रू दिस। तो मैं आपसे आखिर में सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा इस पाकिस्तान को बहुत मुश्किलों से, कुर्बानियों से मिला है। अगर हम ये आज़ादी खो देते हैं तो पहले हम हिंदू के ग़ुलाम थे और हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम भी होंगे, जिनकी बॉर्डर पे फ़ौजें खड़ी हैं नेटो की, वेस्टर्न बॉर्डर पे और ईस्टर्न बॉर्डर पे आपकी जो है ना वो पुराने दुश्मन खड़े हुए हैं। अपनी मदद आपने खुद करनी है। हमें अपने अंदर से गद्दारी निकाल के अपने ज़ाती सियासी मफादात और जो हमारी जो गेंस हैं उसको सेक्रीफाइस जब तक आप नहीं करेंगे। गोरे की एक और खूबसूरत बात बताऊं, बहुत सारी बातों पे बड़े नमक हराम है, लेकिन मामलात में उनकी बातें बहुत अच्छी हैं कि वो जब तोलते हैं तो पूरा तोलते हैं, बात करते हैं तो ईमान की करते हैं, जब किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का हक नहीं मारते। ये चीज़ें इस्लाम की हैं। उमर फारूक का एक सिस्टम उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया सोशल वेलफेयर का, वो उसको क्लेम करते हैं कि बड़ा वेलफेयर सिस्टम है। ये हज़रत उमर फारूक ने इंट्रोड्यूस किया था ये सिस्टम।
कौन कौन सा लिटरेचर है जो हमारे पास नहीं था, लेकिन वी हैव लॉस्ट इट। अब हमने पकड़ लिया है बेंजो, अब हमने जरा बड़े बड़े गाने बजाने हैं, बड़ा बड़ा ढोल कूटना है, हम समझते हैं कि यही हमारी मीरास है। दिस इज नॉट। जब कौमें तबाह हो रही होती हैं तो वो इस तरफ जाती हैं, नाच गाने की तरफ, ऐशो इशरत की तरफ। आज भी अगर आप चीज़ों में पड़ गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए, खुदा की कसम, कल आरफा सिद्दीकी किसी की बेटी थी, कल हम में से किसी की बहनों बेटी की बारी आ जाएगी। क्या हम इतने बेगैरत हो चुके होंगे जब तक कि हम अपनी इज्जत के खिलाफ उठने वाले किसी हाथ को नहीं रोक सकेंगे? उसकी तैयारी हमने आज करनी है। करेंगे सारे लोग? गिव मी अ साउंड वॉइस, स्ट्रॉन्ग वॉइस। पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। जब तक खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे कोई तब्दीली नहीं आएगी। मुल्क हमारा है, मैं तो नहीं दूंगी अपना घर किसी को। वी आर 79% ऑफ टोटल पॉपुलेशन as youth। कदम उठाएं, क्यों डरते हैं? We have with us the results. I would call again the judges, Mr. Haroon Toor and Professor Arif Khatak, to hand over these certificates. थर्ड से शुरू करें, राहीला आबिद। सेकंड प्राइज goes to Ghazanfar Adnan and first prize goes to Suhail Bukhari. I would request Dr. Jameel Khan to give us some conclusion. Bismillahirrahmanirrahim. Respected chief guest, Wahad Saab, respected Shakil Ahmad, director of channel, respected faculty members and students, Assalamu alaikum and good evening. All of the speakers, they did not leave any word for me, but I can add maybe few of my views. That one thing that has been developed in the Pakistani people, I'm including that, that the negative thinking, that whatever we get, we say we cannot do that. Like if you see the examples, some of the examples that, like LUMS is one of the best university in this country, and that has developed by only 4 people, started in 1982 in a small house, and now see that can compete with any university in the world. Same with the GIK Institute, that was started in desert, and now you see that is also, that was number 9 in the Asian Pacific region. And there are many other examples as well. So we can do a lot of things, but this negative thinking, that should be stopped. And we should work very hard. Hard work is very important. As it did by our prophet as well, it's did by our leaders like Qaid-e-Azam. He was a hard-working person. Allama Iqbal, and then the recent examples of Dr. A.Q. Khan. He used to work for 18 hours while developing the nuclear technology. Samad Mubarak, and there are many, many other examples. And then another thing, that is ownership feeling. We don't own Pakistan. The nationalism, Pakistani nationalism, that is fortunately now emerging. We are in a chaotic situation, and in this chaotic situation, one thing is very positive, that is Pakistani nationalism. That is emerging. Now we all, Pathan, Punjabi, Balochi, Sindhi, and any Pakistani, they now talk about Pakistaniyat. So this is important, that nationalism, we should be nationalist, but we should not be nationalist for negative thinking. We should have positive thinking. We should develop, do something. So this ownership is very important. We don't own. Anywhere we work, we don't own. If we are studying, we don't own our university. If I'm working somewhere, I don't own my organization. So ownership is very, very important. And at the end, I would say something like, there are many things that we cannot do. There are something that we can do. Let's start doing something. So we should not wait for tomorrow. We should start right from today, doing something. Thank you very much.